Boys and girls, today we are going to start a new chapter in your life. And that chapter is superposition of waves. First of all, we must see what a wave is. What is a wave? Can anybody tell me? ये वेव क्या होती है और वेव्स में क्या स्पेशल क्वालिटी होती है? So an oscillative disturbance, wave का definition. कल के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इतनी सारी आवाज आ रही है बात करने की आप लोगों की, मैं सोचा कितने महान लोग हैं आप लोग. An oscillatory disturbance traveling through a medium or vacuum is called a wave. But हमेशा ट्रैवल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको स्टेशनरी वेव्स भी पढ़ना हो तो ट्रैवल ही नहीं होती, इधर भी नहीं जाती उधर भी नहीं, वो बाद में समझाऊंगा. तो a wave is an oscillatory disturbance. वेव जो है oscillatory disturbance होता है, और on the basis of whether waves travel further or not, there are two types of waves. आगे चलती है waves, हाँ, on the basis of the vibrations of the particles of the medium. Vibrations of particles of the medium के basis पर हमारे पास दो waves है. एक है ट्रांसवर्स वेव्स, यहाँ हम एक काम करते हैं इसको, अच्छा ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स है, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. ये सब बचपन की चीजें हैं. ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. What are transverse waves? The waves in which the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of the wave are called, the waves are called transverse waves. मतलब अगर समझो यहाँ पर है एक लड़का और उस लड़के के हाथ में है एक रस्सी जो एक खंबे से बांधी हुई है, पोल से. इस लड़के ने रस्सी को ऐसा ऊपर नीचे जर्क दिया तो इस रस्सी में वेव्स आने लगी है. The particles of the रस्सी, the particles of the rope are vibrating. Sometimes they are going up, sometimes the particles are going down. Some particles are going down, some particles are going up. So if we look closely at the picture, we can see that at some places the particles of the medium, at all the places the particles of the medium are vibrating, the particles of the string are vibrating perpendicular to the direction of propagation. What is direction of propagation? The direction in which the wave is moving forward is called direction of propagation. आगे बढ़ने की दिशा, वेव की आगे बढ़ने की दिशा हमारे राइट हैंड साइड की तरफ है. हाथ पे झटका देकर वेव सीधे हाथ की राइट हैंड की तरफ जा रही है, तो वेव के आगे बढ़ने की दिशा राइट हैंड साइड है, और रस्सी के उछलने की दिशा अप डाउन है. तो ये अप डाउन और राइट के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्रीज. रस्सी के पार्टिकल्स कैसे उछल रहे? अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन. और रस्सी की जाने की दिशा क्या है? हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट. तो वेव की लहर की आगे जाने की दिशा है लेफ्ट से राइट, और रस्सी के पार्टिकल्स की उछलने की दिशा है ऊपर नीचे. तो दोनों में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्रीज. द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, एंड हॉरिजॉन्टल इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. तो दोनों में 90 डिग्रीज एंगल बनता है. 90 डिग्रीज एंगल बन रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि these are transverse waves. What is the definition of transverse waves?
The waves in which the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation are called transverse waves. Shall I write down the definition or do you understand it orally? लिखा दूं? Some are saying लिखा दो, some are saying orally. ये तो हमेशा होता है, तो लिख देता हूँ orally. The waves in which the particles of the medium vibrate, एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर. The waves in which the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation are called transverse waves. And the second type of waves that we have to study are longitudinal waves. These are the waves in which the particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation. ये है longitudinal waves. इसमें क्या होता है? Particles का vibrate होने का direction क्या रहता है? This is 1, 2, 3 और ये 4. 4 पे हमरा बन गया एक खुपड़िया. और यहाँ पर है air के particles which are situated equidistant from each other almost. लगभग equidistant है एक दूसरे से एयर के पार्टिकल्स. बॉयज अच्छी खुशबू है, रोज है रोज. अच्छा, तो नहीं ऐसा लग रहा कि कोई गुलाब के फूलों की दुकान पे आ गया हूँ जहाँ बहुत अच्छी खुशबू आती है. हाँ सुनो, बाद में दे देना मुझे वो, मजाक कर रहा हूँ. तो सी जैसे हमने स्विच ऑन की है तो क्या हो रहा है? The particles are vibrating back and forth, to and fro. तो इसके पार्टिकल्स, ये वेव के आगे बढ़ने की दिशा पता नहीं कौन सी है. लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ है ना. डायरेक्शन ऑफ propagation is towards left hand side. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आगे बढ़ने की दिशा लेफ्ट की तरफ है. और पार्टिकल्स वाइब्रेट अब वर्टिकली नहीं हो रहे, पार्टिकल्स भी हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट हो रहे, ऐसे है ना. हमारे सर करते थे पीपल का जीना, ऋतिक रोशन का कौन डैश है. उस जमाने में जब हम पढ़ते थे 12th में थे तो ये ऐसा पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है. तो पार्टिकल क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को पैरेलल एंटी पैरेलल. The waves in which the particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation are called longitudinal waves. तो इसका डेफिनेशन पूरा वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ वर्ड रहेगा प्यारे लाल, बस. बाकी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि एकदम 9th वाइज में रहता ही है. स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में 9th में ही रहता है ये सब. तो क्या डेफिनेशन बनेगा? The waves in which the particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation. ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को पैरेलल है, एरोस पैरेलल एंड एंटी पैरेलल. तो ये वेव्स है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. एग्जांपल बताओ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का. साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. दूसरा एग्जांपल सिस्मिक वेव्स, भूकंप वाली वेव्स. भूकंप वाली वेव्स कौन सी वेव्स होती है? दोनों होती है. सिस्मिक वेव्स दोनों होती है, लॉन्गी भी होती है और ट्रांसवर्स भी होती है. अच्छा, ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल बताओ. वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग. वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग. क्या ट्रांसवर्स वेव्स दो प्रकार की होती है? तो हाँ, ट्रांसवर्स वेव्स दो प्रकार की होती है. कौन कौन से दो प्रकार की होती है? तो एक होती है मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स. मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स. मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब क्या है? द ट्रांसवर्स वेव्स which require a material medium for their propagation, which can spread through solid only, which can be transported from one place. मतलब
The waves which can be generated only on solids are mechanical transverse waves. मैकेनिकल यानी इनको मटेरियल मीडियम चाहिए, रस्सी चाहिए उछलने के लिए। और दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स होती है जिनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम आल्सो। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लाइट वेव्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी स्ट्रिंग और रोप। क्या लाइट वेव में रस्सी होती है कोई उछलने वाली? नहीं। फिर वहां क्या उछलता है? वहां क्या उछलता है? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, जो वेव में कुछ उछलता है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, तो काय के वाइब्रेशंस होते हैं उसमें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है। So in EM waves, in electromagnetic waves, electric field vector and magnetic field vector oscillate perpendicular to each other and to the direction of propagation also। अभी मैं आपको देखो कथकली करके बताता हूँ, आपको याद आएगा। अच्छा बोलेंगे ये मेरा हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मेरा हाथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना? और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन उधर जाने की, तो मैं जा रहा हूँ एक्स एक्सिस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ वाइब्रेट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ हो रहा है। तो स्पीड में हाँ वेव की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है, एचडी कॉल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, लेकिन असली इफेक्ट कौन शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और याद करो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट में और साउंड में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, दोनों का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है, बहुत कुछ होता है। सिर्फ एक चीज है जो सिर्फ लाइट की होती है, साउंड की नहीं होती है, वो है पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन याद करो खिड़की है ना, ऑप्टिकल एक्सिस, खिड़की में आधी लाइट ब्लॉक हो जाती है, जा रही है, याद करो, आता है याद? हाँ। तो चलो एग्जाम्पल, ये वेव्स काय में से ट्रैवल होते हैं? वैक्यूम में से ट्रैवल हो सकते हैं। और ये वेव्स वो होते हैं जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए। Mechanical transverse mechanical waves can travel only through those substances which have a definite shape, and longitudinal waves can travel through solids, liquids as well as gases, but they cannot travel through vacuum। longitudinal waves भी वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं होते, इसीलिए सन पर हर सेकेंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, बड़े बड़े ब्लास्ट धमाके हो रहे हैं, लेकिन हमको कोई धमाका अर्थ पे सुनाई नहीं देता है ना। अगर सन पे होने वाला एक ब्लास्ट अगर अर्थ वालों को सुनाई दे, सबके कान फटके और मर जाएंगे अर्थ के लोग, इतने ब्लास्ट हो रहे सन पर, है ना। हल्के वाले हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर कंबाइनिंग टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई, बट द मास ऑफ टोटल मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन द टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। ये बाद में समझाऊंगा न्यूक्लियर फ्यूजन, और फिर समझाऊंगा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैसा वो फॉर्मूला बताया और कैसे हिरोशिमा नागासाकी हो गया। बोलता हूँ